Good morning, all dear students. Today we start from the another part of chapter 8, which is over the counter medication. So here we discuss about the significance of medication about the OTC. So they are comparatively cheaper as compared to brand. They are cheaper in cost as increased trend in self-care. As we can see in the recent time, most of the patient prefer OTC medication just because of the affordability. Just because of the money problem, they want to prefer to buy or say or receive a OTC medication. Next, increased tendency of patient to maintain their health. दैट मीन्स कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये टेंडेंसी बढ़ रही है कि वो मेडिसिन ओटीसी से ले सकते हैं और ईजिली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, केमिस्ट कैन बी डिस्पेंस ओटीसी. दैट मीन्स फार्मासिस्ट जो होते हैं वो ओटीसी मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं. हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पेंसिंग, हैंडलिंग एंड compounding. So basically dispensing is that in which pharmacists hand over the medicines to the patient, and handling of the medicine, that means pharmacists take prescription from the patient and they receive all the medicines from the racks or cells. And the last one is compounding. According to the pharmacist, whenever they counsel to the patient and provide medicine according to their prescription, and counsel like they provide suggestion, guidance, proper knowledge about the drug or about the condition, so which is covered as dispensing or compounding. So this is also a phenomenon which is time saving medication. That means in a case of emergency we can purchase or buy OTC medication from anywhere wherever we want. जहाँ से हम चाहते हैं 24/7 अवेलेबिलिटी होती है फार्मेसी शॉप्स की. तो हम जब हमें एमरजेंसी सिचुएशन में रिक्वायर्ड होती है तो हम ये दवाइयाँ ले सकते हैं. Fewer side effects compared to the prescribed medication. That means they have a less side effects. Then comes to the next slide. Need of pharmacist. The use of OTC drug is steadily increase in global and Indian pharmaceutical market, which means अगर हम देखें तो हमारा ये ओवर द काउंटर जो ड्रग्स हैं इनका सेल और मार्केट वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. नॉट इन इंडिया, ग्लोबल लेवल पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाइक पे एग्जिस्ट कर रही है. इंडिया हैज़ अ वेरी लेस रेशियो 1:1800 of doctor to the patient and literacy rate lies at the 74, which means कि ये कहना चाह रहे पेशेंट जो है वो 1800 है और डॉक्टर जो है वो 1 है. तो एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है. यहाँ पे पेशेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर यहाँ पे कम है. सो इंडिया में लिटरेसी रेट जो है 70% है. यहाँ पे अनएजुकेटेड एम्प्लॉय, अनएजुकेटेड पर्सनैलिटी जिन्हें डिजीज़ के बारे में नहीं पता है, जिन्हें ड्रग्स कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, ये नहीं पता है, तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है. सो हेयर वी वांट or need a pharmacist who deliver the proper guidance about the treatment of any disease or about the any condition, health risk condition. So coming to the next point, the availability of OTC medication allows greater than the access of treatment of people to treat numerous ailments without the supervision of healthcare professional.
अगर हम बात करें ओटीसी मेडिकेशंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बहुत से न्यूमरस नंबर एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं, माइनर एलिमेंट्स को, लाइक कोल्ड, कफ, डायरिया, स्नीजिंग, फीवर, कॉन्स्टिपेशन। सो इन सब को मिला के, इन सब छोटे छोटे बीमारियों के लिए फार्मासिस्ट जो है पेशेंट्स को दवाइयाँ देता है। यहाँ पे पेशेंट जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की नीड नहीं समझता है। सो मोर ओवर डॉक्टर डू नॉट हैव राइट टू प्रिस्क्रिप्शन फॉर माइनर एलिमेंट्स। ऐसा भी होता है कि मोस्ट ऑफ द फिजिशियन डज नॉट वांट टू राइट अबाउट द माइनर एलिमेंट्स, बट in this case, if pharmacists have an opportunity to provide medicines to the patient, they can provide easily, or they can guide to the patient according to their situation. Next, we start with the OTC drugs have their own benefits such as self medication. Like हम सबको पता है जो OTC ड्रग्स होती हैं उनके कुछ अपने बेनिफिट है, लाइक दे आर यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन, दे आर यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन, और they can use whenever we feel ill or feel unhealthy. So what is, here is a question arrive, what is self medication? Self medication is a treatment in which patient can take a drug without consultation of healthcare professional, in which way we can see the patient, every patient have a first aid box या first aid kits in their home. So whenever they required in emergency situation, like if they are suffering from the headache, body ache, fever, cold, so they don't want to visit hospital or meet to the healthcare professional. They only want that कि हम जो ड्रग चाहते हैं वो हमें घर पे ही इजीली अवेल हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब भी या जो पेशेंट है वो कभी भी ड्रग्स लेने के लिए, माइनर एलिमेंट्स के लिए कभी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाना पसंद नहीं करते। इन नाउ डेज दे वांट कि हम घर से ही कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं और हमें इससे ही आराम मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ बेसिक फिनोमिनन जिसमें ये बता रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन और ओटीसी मेडिकेशन के बेनिफिट्स हैं। बट apart from the benefit, if patient can consume or take these over the counter medication in excess amount, or they can abuse or misuse of any over the counter drug, they lead a toxicity in their body. That means अगर पेशेंट हमारा जो है वो ओवर द काउंटर ड्रग्स को ले रहा है और उसके साथ क्या कर रहा है, कोई जो ड्रग है उसको कॉन्टिन्यूस फेज में लिए जा रहा है, कंज्यूम किए जा रहा है, तो एक रजिस्ट टाइम पे बॉडी जो है उसके लिए टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है, विच मीन्स कि ड्रग का अब्यूज और मिसयूज पेशेंट्स के लिए रिस्क फैक्टर कॉज कर सकता है। हमें उसे गाइड करना है ताकि वो सेल्फ मेडिकेशन जब भी ले तो वो कभी भी उसकी हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर ना बने। Patients with the minor ailments who are need OTC drugs are often not aware of the fact they are no any harmless medicine. That means कि व्यक्ति को, जो भी पर्सन है उसको पता होना चाहिए जो हमारी मेडिसिन है वो हार्मलेस, देखो हार्मलेस तो हो ही नहीं सकती, मेडिसिन जो है वो सिंथेटिक है और सिंथेटिक जो है हमने ड्राइव किया है, तो ड्राइव प्रोडक्ट तो हमारा हार्मलेस हो ही नहीं सकता, वो हार्मफुल होगा। ठीक है, तो दिस नेसेसिटी फॉर द फार्मासिस्ट टू एडुकेटली इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द proper choice of medicine, that means selection of choice of medicine, rational use, safe use, or as well as about their possible AIDR. that means कि पेशेंट जो है उसको ड्रग का रेशनल यूज पता होना चाहिए
कौन सी दवा किसके साथ कब लेनी है, उसका सेफ यूज पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उससे होने वाले एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी पता होने चाहिए। एज वेल एज पेशेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए फार्मासिस्ट का, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है वो पता होना चाहिए, क्या डिस्क्राइब करना है, कितना इन डिटेल्ड होके बताना है वो पता होना चाहिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर द फार्मासिस्ट being a pharmacist to play a role of a good pharmacist. This is a enough content to deliver to the patient. Thank you.